Hello, everyone. Welcome to the Authorhood podcast. Hope things are beautiful at everyone's end. To grace our show today, we have Mr. Rajesh Talwar with us, a seasoned author and legal expert who has recently published The Mahatma's Manifesto, a thought provoking critique of Hind Swaraj and the almost divine status Mahatma Gandhi holds in India. With a career spanning legal reform and human rights, including work with the United Nations, Talwar brings a sharp, analytical perspective to his writing. Known for his diligent thoughts and articulate speech, he challenges conventional wisdom, encouraging readers to re-evaluate history with fresh eyes. His latest book is a bold exploration of Gandhi's ideologies, questioning their relevance in modern India. Hello, sir. Thank you very much for accepting our invite. Welcome. Thank you, Ashita. It's very nice to be with you as well. And especially, I think for a book like this, because you are a psychologist by training, apart from uh, reviewing books and discussing with authors, that is one of your qualifications. This book is also about how the writings of Mahatma Gandhi and Hind Swaraj, they give us an insight into uh, the Mahatma's psychology. So, so very pleased to be with you. Wow, sir. Those were some real nice words. Thank you very, very much. How will you best introduce yourself to the listeners? Okay, well, मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत साल तक वकील रहा. I was a lawyer for many years. और as Bobby Deol said in his film Tariq Pe Tariq, so I saw lots of things wrong with our justice system. तो मैंने कोशिश की कि अखबारों में लिखूं. अच्छा. अखबारों ने कहा कि आप वकील हैं लेकिन आपका कोई और भी ओहदा है, बिकॉज हम कुछ पब्लिश करेंगे तो कोई बैकग्राउंड होना चाहिए. मैंने कहा देखिए मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में. So they said, okay, that's fine. So under the byline that Rajesh Talwar is a lawyer who also teaches law, they started publishing various articles on different aspects of the court system जहाँ पे रिफॉर्म की जरूरत थी. जी. तो जब 15-20 ऐसे आर्टिकल्स छप गए तो मुझे लगा कि क्यों ना किताब ही लिखी जाए. फिर मैंने 2 किताबें लिखी और उन्हीं किताबों की वजह से जब मैं ब्रिटिश शेवनिंग स्कॉलरशिप के लिए मैंने अप्लाई किया था, तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो जो ब्रिटिश एम्बेसडर शेयर कर रहे थे उन्होंने किताबें देखी और उन्होंने कहा कि वी विल गिव यू अ स्कॉलरशिप. बिकॉज कोई और आया था इंटरव्यू में, वकील आए थे who were more successful than I was at the time, but nobody had written a book. और मेरी 2 अच्छी प्रोडक्शन वैल्यूज के साथ किताब थी तो उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिया. तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बहुत सारे लिसनर्स सोचते होंगे कि किताब लिखने में क्या फायदा. तो किताब लिखने में कई फायदे हैं और रॉयल्टीज के अलावा और भी फायदे हो सकते हैं. मुझे 15 लाख रुपए का स्कॉलरशिप मिला एट अ वेरी यंग एज. तो मेरे पास समझिए अगर 50 लाख होते, 1 करोड़ होता उस जमाने में, तभी मैं जा पाता. सो आई वेंट एंड आई फिनिश्ड माय LLM फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम. और उसी के साथ साथ जैसे मैंने फिनिश किया मुझे यूनाइटेड नेशंस में भी जॉब मिली. और यूनाइटेड नेशंस में मुझे जॉब मिली बिकॉज ऑफ माय क्वालिफिकेशंस बट आल्सो बिकॉज आई हैड पब्लिश्ड बुक्स which जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया they were impressed by. तो उसके बाद फिर मैं समझ लीजिए कि I became a believer कि किताबों से मुझे इतना फायदा हुआ है तो मेरा भी कोई फर्ज बनता है कि मैं किताबें लिखूं.
while joining the UN and working for the UN. तो उसके बाद मैं समझिए एक दो किताबें हर साल लिखता रहा, और अब मैंने 42 किताबें लिखी हैं। ये मेरी 42nd बुक है, द महात्माज मैनिफेस्टो। मैं सोचता हूँ कि हाफ सेंचुरी करके रिटायर हो जाऊंगा फ्रॉम राइटिंग, शायद। देखिए आगे क्या होता नो सर, ये नहीं है। करिएगा। श्योर 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 श्योर। थैंक यू थैंक यू। But amazing, like starting up till end, जिसे कहते हैं एक wholesome introduction. It was that. Thank you. Amazing, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. So, first things first, having worked with the UN across multiple continents, do you see parallels between Gandhi's ideas and those of leaders in other post-colonial nations? गांधी को मैंने याद किया इन अ पॉजिटिव वे जब मैं बहुत सारे यूएन मिशंस में काम किया, जैसे वॉर जोन्स थे, सोमालिया, लाइबेरिया, ईस्ट तिमोर, अफगानिस्तान, कोसोवो। तो उस समय मैंने गांधी जी को इसलिए याद किया बिकॉज गांधी वॉज ए ग्रेट नेगोशिएटर, और उन्होंने अपने वकालत के दौरान जब साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस कर रहे थे तो बहुत सारे केसेस को कॉम्प्रोमाइज करा दिया। दोनों पार्टीज को टेबल पे बुला के हैमर्ड आउट अ कॉम्प्रोमाइज। और यूएन में भी हमारा कुछ ऐसा ही रोल होता है, टू गेट द वॉरिंग पार्टीज टू कम टू अ अग्रीमेंट। तो इस मामले में तो मैं गांधी जी से इंस्पायर्ड था, लेकिन कुछ और चीजों में आई वॉज नॉट इंस्पायर्ड एट ऑल। Rather, I was very disappointed in गांधी जी। फर्जन जो गांधी जी के व्यूज थे एजुकेशन के बारे में, औरतों के बारे में, जब मैं अफगानिस्तान में था तो I was thinking of Gandhi when I was trying to bring about, together with the senior leadership, the compromises between the warring factions. But I was also reminded of Gandhi ji when I was seeing the ideology of the Taliban. बिकॉज कुछ मामलों में गांधी जी के व्यूज और तालिबान के व्यूज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। मसलन गांधी जी वॉज अगेंस्ट वैक्सीन्स। उन्होंने रिकॉर्ड पे ये बात लिखी है कि वैक्सीन्स एक बारबैरिक प्रैक्टिस है, ये बर्बरता की निशानी है जो लोग वैक्सीन लेते हैं और देते हैं। और मैं तो समझता हूं, उन्होंने लिखा है कि इट इज बेटर टू डाई देन टू टेक अ वैक्सीन। और मैंने जब ये बात पढ़ी हिंद स्वराज में, और डॉक्टर्स की भी बहुत निंदा करते हैं, तो मैं बहुत हैरान था, बहुत चकित था कि ये क्या पढ़ रहा हूं मैं। गांधी जी के ये व्यूज जो हैं ये तो तालिबान को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान भी खिलाफ था। मैं एक एरिया गया था जहाँ पे कुछ औरतें, उनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत थी, और हमारी फीमेल डॉक्टर्स गई थी कि भाई वी नीड टू एग्जामिन योर वाइफ। एंड द हस्बैंड सेड नो नो, यू कैन नॉट एग्जामिन देम इन द प्राइवेट एरियाज, दैट इज नॉट प्रॉपर। देखिए हम महिला हैं, और अगर हम आपकी वाइफ को ट्रीट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो मर जाए। तो जो तालिबान पेट्रियार्क्स थे उन्होंने कहा, वी वुड प्रेफर दैट शी डाइज, बट वी विल नॉट अलाउ हर टू बी एग्जामिन्ड एंड टू हैव हर नेकेड बॉडी रिवील्ड टू एनीबॉडी, इवन इफ इट इज अ डॉक्टर। तो वजह अलग थी, लेकिन वो भी डॉक्टर्स, वैक्सीनेशन, मेडिकल इंटरवेंशन के सख्त खिलाफ थे, जैसे कि गांधी जी थे। गांधी जी कहते थे डॉक्टर्स तो जरूरत नहीं हमें, डॉक्टर्स की वैक्सीन्स की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, और ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं ये सब बंद कर देने चाहिए। पिछले साल की ही WHO की रिपोर्ट है जिसने अनुमान लगाया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अभी तक
वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स की मदद से 150 million lives have been saved, including those of women and children. So, अगर हम गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते तो 150 million people would have died, and they would have died with terrible pain, suffering, because बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, ये नहीं कि आप एकदम से मर जाएंगे, आप तड़पते तड़पते मरेंगे। तो ये तो एक ही एग्जाम्पल है। हिंद स्वराज में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें हमें डिस्कार्ड करना चाहिए। गांधी जी की बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन उन्होंने कई ऐसी बातें लिखी हैं which should be ignored, which should even be condemned. I have studied history up till class 10th. उसके बाद भी I had an inclination towards the subject, तो थोड़ा बहुत पढ़ना about the leaders and what all has always been around. लेकिन ये मैंने पहली बार ही जाना है कि ऐसी भी कोई बात लिखी हुई है और वो हिंद स्वराज में लिखी हुई है। बहुत अजीब लगा सुन के कि ऐसा थॉट प्रोसेस अगर है तो वाकई में आपने जो अभी ये यूएन वाली रिपोर्ट, ये WHO वाली रिपोर्ट के साथ आपने जो रिलेट करके उसको बताया, कितना डिजास्टर्स हो सकता है। जी 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 जी। ऐसे गांधी जी के बहुत सारे विचार हैं। मसलन वो मशीनरी के खिलाफ थे, इंडस्ट्री के खिलाफ थे। तो अगर हम गांधी जी के नक्शे कदम पर चलते, लोगों ने कहा कि जो नेहरू जी को कई दफा कंडेम किया जाता है, some जस्टिफिकेशन के उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिसीज बहुत सालों तक चलाई, जिससे इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाया। और ओनली इन द 1990s जब मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए with the collaboration of Narasimha Rao ji, who was the prime minister at that time, तो उसके बाद फिर हमारी इकोनॉमी ने गति पकड़ी और उसके बाद और रिफॉर्म्स हुए, एंड वी हैव डन so much better since the 1990s. तो नेहरू जी को क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये सोशलिज्म, नेहरूवियन सोशलिज्म ने हमें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ दिया था, जो डिस्पैरेजिंगली एक एक्सप्रेशन यूज किया जाता था। लेकिन ये तो हमने नेहरू जी की आइडियोलॉजी फॉलो कर हमारी हालत थोड़ी खराब रही। अगर गांधी जी के नक्शे कदम चलते तो हमारी हालत और भी बहुत बदतर होती, बिकॉज हमारे पास कोई डिफेंस इंडस्ट्री नहीं होती, कोई डिफेंस प्रिपेयर्डनेस नहीं होती। ना कि 62 और हारे चाइना से, हम 71 भी हार जाते, बांग्लादेश वॉर, इंडिपेंडेंस, और जो पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुए हैं हम सभी हार जाते, और इंडिया वुड हैव बीन पार्टीशन मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज वो इम्प्रैक्टिकल आइडियलिज्म कह लीजिए कि हमें मशीन के खिलाफ जाना है, एक रोमांटिसाइज विजन कि हमें सिर्फ गांव में रहना है, हथियार नहीं रखने हैं, लोगों का हृदय परिवर्तन करना है। तो हिंद स्वराज इज फुल ऑफ इम्प्रैक्टिकल आइडियलिज्म which can be very dangerous, because एक इंसान अगर खुद इम्प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट है तो he will suffer the consequences. बट अगर आप वही इम्प्रैक्टिकल आइडियलिज्म को एक फिलॉसफी बनाकर पूरे देश पे लागू करें तो it can just spell a great disaster. So thankfully we never implemented Gandhiji's philosophy, but क्या है कि we have not discussed his philosophy properly, and we have not said openly कि देखिए ये सारे ideas they deserve to be discarded. बिल्कुल। Next question to you was around case studies that you would like to share. शायद आपने वो चीज पहले ही आंसर कर दी, बट स्टिल आई वुड लाइक टू आस्क यू कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, योर एक्सपीरियंस विद ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिसी मेकिंग, आर देयर एनी ग्लोबल केस स्टडीज वेयर Hind Swaraj like model it would have succeeded? No.
आई थिंक जो गांधी जी कह रहे थे उसका इंटरप्रिटेशन अगर आप ये लें कि वी शुड बी मोर कंसिडरेट टू द एनवायरनमेंट, वी शुड यूज इंडस्ट्री मोर ह्यूमेनली, ये नहीं कि जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, उनको हम हटा दें, उनकी जो सदियों से एक लाइफस्टाइल रही है वो रुइन कर दें और इकोलॉजी को बर्बाद कर दें। यहाँ तक अगर हम गांधी जी को इस तरह से इंटरप्रेट करें तो बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर हम गांधी जी खुद जो उनकी मीनिंग थी तो वो तो वुमेन्स राइट्स के काफी खिलाफ थे। इन स्वराज में लिखा है कि देखिए औरत जो है, गृहिणी जो है, वो कितनी सुखी रहती है, वो क्वीन ऑफ द हाउस होल्ड होती है। क्या फायदा है कि अगर औरत सड़कों पे ऐसे आवारागर्दी करे, आवारा की तरह घूमे? क्या फायदा कि अगर औरतें जो हैं वे फैक्ट्रीज में स्लेव कर रही हों? तो मैं भी एक हाउसवाइफ के बहुत वैल्यू करता हूँ। हाउसवाइफ्स की कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ज्यादा हैं, they deserve to be applauded, but these are not the only alternatives जो गांधी जी ने बताए कि या तो हाउसवाइफ बन जाइए, या फैक्ट्री में काम करिए, या सड़कों में घूमिए। इन्हें लाइक ए वेग्रेंट woman can become a pilot, woman can become an astronaut, woman can become a thinker, woman can be a poet, a writer, a psychologist, so many other things. She can contribute to the nation, she can contribute to her own self growth. लेकिन हिंद स्वराज आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि औरत को गांधी जी बहुत एक सीमित दायरे से देखते थे। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑल्सो। तो इस मायने में भी जो गांधी जी का विजन था फॉर विमेन, हालांकि उनका खुद का प्रेजेंटेशन मैचो नहीं था, तो कई पॉजिटिव फीमेल एट्रीब्यूट्स को गांधी जी ने अपनी जिंदगी में, अपने प्रोटेस्ट मूवमेंट में उनको अडॉप्ट किया। इनफैक्ट ही बोरोड सम आइडियाज फ्रॉम इंडियन वुमेन। मसलन एक औरत है, उसको उसकी शादी हुई है, हस्बैंड उसका ख्याल नहीं रख रहा, बच्चों का ख्याल नहीं रख रहा, शराब में पैसे उड़ा रहा है, तो कई दफा द वाइफ इन इंडिया, गांधी जी ने कहा कि वो शी गोज ऑन अ फास्ट। तो उस फास्ट को देख के हस्बैंड थोड़ा कुछ दिन तो कहता है कि चलो फास्ट करने दो, मेरे को क्या फर्क है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो खाना भी बनाना बंद कर देती है, तो फिर वो साड़ी भी ले आता है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। तो ये औरत का तरीका है। तो गांधी जी ने कुछ ऐसा ही अडॉप्ट किया टुवर्ड्स द कॉलोनियल पावर्स के पैसिव रेजिस्टेंस, ये नहीं कि उनसे लड़ा जाए। तो ही एक्चुअली बोरोड फ्रॉम द वुमन, बट अनफॉर्चुनेटली his views on women themselves, although he used their qualities in his struggle, he saw it in a very limited way. एक दफा उन्होंने कस्तूरबा गांधी को घर से निकालने की भी कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने अफसोस किया था बाद में, बट दैट जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि उनका माइंडसेट जो था वो काफी पेट्रियार्कल था। अगेन आपने ये एग्जाम्पल दिया कि कुछ लाइक ही एडमिटेड के उनके कुछ तरीके ही took from the Indian women. What do you think could be the possible reason कि फिर भी उन्होंने women favoring ideology उनकी नहीं रही? What would you say on that? I think जैसे गांधी जी जो है वही was a flawed human being like all of us। क्या है कि हमारे देश में या तो लोग भक्त बन जाते हैं, तो ये सिर्फ मोदी भक्त वाली बात नहीं है। मोदी के भक्त के बारे में बड़ी बातें हुई हैं, लेकिन लोग तो राजीव गांधी के भी भक्त हैं, राहुल गांधी के भी भक्त हैं, सोनिया गांधी के भी भक्त हैं। या भक्ति इज अ वंडरफुल ब्यूटीफुल थिंग इवन द स्पिरिचुअल डायमेंशन। लेकिन अब जब आप पॉलिटिशियंस की भक्ति करोगे, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो या तो आपको मिलेंगे गांधी भक्त, या आपको ऐसे क्रिटिक्स मिलेंगे जो सोचते हैं कि गांधी जैसा बुरा आदमी कोई ना था। तो हिस्टोरियंस में भी ये डिवीजन है। एक तरफ यू विल फाइंड हिस्टोरियंस लाइक रामचंद्र गुहा, जिन्होंने गांधी पे तो एक किस्म की कॉटेज इंडस्ट्री बना ली है,
किताबें लिखकर जिनमें उन्होंने गांधी जी की तारीफ की है, और बहुत सारी सही बातें लिखी हैं, वेयर ही डिजर्व्स टू बी प्रेज्ड। लेकिन अब वो उस इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, तो वो गांधी के खिलाफ कुछ नहीं लिखेंगे। और दूसरी तरफ यू हैव पीपल, सम ऑफ देम आर कम्युनिस्ट, जो कहते हैं गांधी जी वॉज ए ब्रिटिश एजेंट। और कुछ राइट विंग हिस्टोरियंस हैं, वो इस मामले में दे विल एग्री विद द लेफ्ट विंग हिस्टोरियंस कि हाँ, गांधी जी तो एजेंट थे और गांधी जी वॉज वेरी यूजलेस फॉर इंडिया। तो यू हैव एक्सट्रीम ओपिनियंस। तो मैं तो समझता हूं कि एक वेस्टर्न फिल्म आई थी जिसका टाइटल था द गुड, द बैड एंड द अगली। तो गांधी जी भी वैसे ही थे, उनमें बहुत सारा गुड था और काफी कुछ बैड था, और कुछ चीजें अगली भी थी। मसलन जब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे टू स्लीप विद young women, to test his willpower, to abstain from, to suppress his sexual passion. That was an ugly dimension because that was not really informed consent by the women. उनके हस्बैंड्स उनको परमिशन दे देते थे, पर ये गांधी जी का एक्सपेरिमेंट था, उन औरतों को उन्होंने कंसिडर नहीं किया। लेकिन हम तो या तो उनको सेंट बनाएंगे या उनको सिनर बनाएंगे। वरज हकीकत यह है कि ना वो सेंट थे, ना वो आउट एंड आउट सिनर थे, वो कुछ बीच में थे। तो आई थिंक इन द रिलेशन टू द क्वेश्चन यू आस्क्ड इज दैट इट इज अ स्ट्रेंज मिक्स के एक तरफ तो उन्होंने औरतों से बहुत कुछ सीखा, अपनी माँ से सीखा जो काफी फास्ट करती थी, और गांधी जी का जो फास्टिंग का पॉलिटिकल मूवमेंट चला, so he was inspired by his mother. लेकिन on the other hand, his mother was a housewife and he saw women within the confines of that role. ये वो हाउसवाइफ ही बेहतर है कि हाउसवाइफ बने, उनके लिए वही बेहतर है। I have never had this grave discussion around any of the leaders. क्या क्या हुआ है, what all has been around us, and to an extent we have been unaware. We are in a state जहाँ पर हम unaware रहना चाहते हैं। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, अनअवेयर रहना चाहते हैं। और इस बात पे सरोजनी नायडू ने भी, जो एक ग्रेट पोएटेस थी, उन्होंने भी टिप्पणी की है। Sarojini Naidu said famously that most people don't realize how much money it took for the Congress to keep Gandhi ji in a state of poverty. और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं। मसलन गांधी जी, he caught the imagination of the people because he dressed very simply. लोगों को लगा कि नेहरू जी तो इतने बढ़िया कपड़े पहनते हैं, जिन्ना भी वेस्टर्न अटायर में सूट बूट टाई, गांधी जी हमारे जैसे हैं। गरीब आदमी को ये लगा, और ये सेंटली किस्म के इंसान हैं। लेकिन सरोजनी नायडू जी लिखती हैं कि गांधी जी को इस पॉवर्टी के इमेज में रखने में हमारा बड़ा खर्चा हुआ, कांग्रेस का। एंड शी गिव्स टू वेरी गुड एग्जांपल्स। जैसे कि गांधी जी थर्ड क्लास में सफर करते हैं। एक बार एक इंग्लिश जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि आप थर्ड क्लास में क्यों जाते हैं? तो गांधी जी ने बड़ा फेमसली कहा, ये मैं इसलिए जाता हूं क्योंकि कोई फोर्थ क्लास नहीं। और लोगों ने बहुत तालियां बजाई। इट वॉज अ वेरी क्लेवर रिमार्क बाय मिस्टर गांधी। और कहीं पे आप एडमायर भी करते हैं कि वो इतने सिंपल अटायर में रहते हैं, इतने सिंपल तरीके से खाना पीना उनका है, और थर्ड क्लास में ट्रैवल करते हैं, अनलाइक द लीडर्स जो दूसरे देशों में हैं। लेकिन सरोजनी नायडू जी पॉइंट आउट करती हैं कि वो जो थर्ड क्लास कंपार्टमेंट है, कांग्रेस उस कंपार्टमेंट का कब्जा कर लेती थी। तो वो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि ऑर्डिनरी पीपल के साथ गांधी हो, तो वो कांग्रेसियों को बिठा देते थे उसी कंपार्टमेंट में। who would be like the poor people whom Gandhiji is sitting with. So the third class compartment was actually not a third class compartment. हाँ, बाहर से उसमें थर्ड क्लास लिखा होता था,
लेकिन अंदर जो लोग बैठे होते थे वो सब कांग्रेसी होते थे। ऐसे ही सरोजनी नायडू जी एग्जाम्पल देती हैं कि गांधी जी अक्सर बिरला हाउस में ठहरते थे, जो एक बहुत शानदार बंगला था, पर उनको फिर बुरा लगता था कि मैं कितने रईस इंसान के घर में रह रहा हूँ, मुझे गरीबों के साथ भी रहना चाहिए, दलितों के साथ भी रहना चाहिए। सो ही यूज्ड टू इंसिस्ट कि अब मैं कुछ दिन एक दलित घर में रहूंगा। तो कांग्रेस की जो मशीनरी है वो ढूंढती थी कि कहाँ पे दलित इलाका है, और वहां पे गांधी को शिफ्ट करते थे। लेकिन जो आसपास के गरीब दलित थे उन सबको हटा देते थे, और वहां पे कांग्रेसी उनके घरों के कब्जा कर लेते थे, ताकि गांधी जी सिक्योर रहें और गांधी जी इंसुलेटेड हों। तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। I will not say that Gandhi ji was aware of all this. I don't know if he was aware. Possibly not. I would like to give him the benefit of the doubt. But सरोजनी नायडू का कहना बिल्कुल ठीक है, that जो बाहर से लगता है वो अक्सर होता नहीं है। बाहर से तो यही लगता था गांधी जी थर्ड क्लास में जा रहे हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। बाहर से यही लगता था कि गांधी जी एक दलित घर में रह रहे हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। It isn't just Gandhi who you're giving the benefit of doubt. It's the people of India who have always been given the benefit of doubt, and they have beautifully used it, still using it, and आगे भी यही होगा. Just so surprised to know all this. हाँ, इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब मैंने हिंद स्वराज पढ़ी, मुझे किसी एक गांधी भक्त ने किताब प्रेजेंट की। उनके दोस्त सुरेश शर्मा, जो CSDS में काम करते थे एज ए डायरेक्टर, ही वाज अ प्रोमिनेंट हिस्टोरियन, उनकी किताब प्रेजेंट की कि ये सुरेश जी ने किताब लिखी है। So I thought I will not be surprised. I started reading it, and then when I started reading it, I became more and more angry. मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही गलत किस्म के ख्याल हैं। Why should we be following such foolish suggestions? फिर मैंने सोचा कि क्या मैं यही सोच रहा हूँ, तो मैं अमेजोन चले गया कि और लोगों का की क्या राय है। सब 5 स्टार रिव्यूज थे, 4.5, 4.6, 5, 4 से कम तो कोई रिव्यू था ही नहीं। सब तारीफ कर रहे थे, हिंद स्वराज इज अ ब्रिलियंट बुक, हिंद स्वराज से मेरी लाइफ चेंज हो गई, हिंद स्वराज इज अ फैंटास्टिकली रिटन। और मैं हैरान हो गया। फिर मुझे लगा कि एक किताब लिखनी ज़रूरी है, बिकॉज इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि लोग पढ़ के भी समझ नहीं रहे कि इसमें कितनी सारी गलत बातें लिखी हुई हैं। ऐसे पर यह है कि गांधी जी की ऐसे इमेज है, ऐसी उनकी छवि है कि लोग उनको क्रिटिसाइज करने से कतराते हैं। जी. मुझे तो बल्कि एक जो बच्चों की कहानी है, द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स, उसका याद आता है कि एक बार एक एम्परर थे, वो विदाउट क्लोथ्स चले गए। उसके टेलर ने कहा कि ये बहुत महीन काम हुआ है, उन्होंने पहने हुए हैं कपड़े, और सब लोग तालियां बजा रहे थे। फिर एक बच्चे ने कहा कि अरे, एम्परर ने तो कोई कपड़े नहीं पहने। तो ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी। हिंद स्वराज में ऐसी इतनी सारी ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं, which is the reason why Hind Swaraj has never been prescribed in schools or in universities, because वो टीचर्स को सुनाना पड़ेगा फिर स्टूडेंट्स को कि आप साइंसेस मत पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मत पढ़िए, वैक्सीन्स मत लीजिए, और मशीनरी के खिलाफ रहिए, औरतों को एक सीमित दायरे में ही रहना चाहिए। तो वो कोई पढ़ा नहीं सकता, हिंद स्वराज कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड। पर एक किस्म का मैसिव कवर अप है जिसमें हम लोग भी शामिल हैं। मुझे कई लोगों ने अटैक किया। मैंने किताब लिखने के बाद जो मेरे स्कूल के, कॉलेज के कुछ और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनको मैंने किताब के रिव्यूज फॉरवर्ड किए,
किताब के एक्सट्रैक्ट्स फॉरवर्ड किए। कुछ लोग बड़े अपसेट हो गए कि हमें मत भेजिए ये, हम गांधी के भक्त हैं, और बड़े ऑफेंडेड हो गए। But I think as a nation, we will not be able to grow unless unless we can become more critical in our thinking, you know. So बहुत सारे लोग नाराज हो गए मुझसे कि आपने ये क्या लिख दिया, पर मीडिया इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन, आई सपोज। तो मेरे पब्लिशर ने, कई मीडिया हाउसेस, कुछ ने तो रिव्यू लिखा, लेकिन कुछ गांधी का स्टेचर ऐसा है। So we should learn from our ancient heritage। जब डिबेट्स हुआ करते थे, लोग सुनते थे प्रोज एंड कॉन्स, एंड दे वुड मेक अप देयर ओन माइंड। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि किसी का कोई क्रिटिसिज्म हो तो हम आंख और कान बंद कर लें कि नहीं, हम नहीं सुन सकते कुछ भी इनके खिलाफ। एक वॉल्टेयर की बहुत फेमस सेइंग है। He said, I may disagree with you, but I will defend to the death your right to disagree with me. So we should have more room for critical expression. But it's been lovely to talk to you, Ashita, today. And I hope that your viewers will find this session to have been useful. And they maybe they might pick up the book also. But in any case, they would have heard this discussion, and that itself is also very useful. This is worth every listen. जानना जरूरी है। ऐसे ठीक है, आप भक्त हो, आप उनकी क्रिटिक हो, कुछ भी हो जी, आप जो भी हैं, यू मस्ट नो द रियल थिंग। आप तब बनिए, आप भक्त बनिए when you know the real thing, आप क्रिटिक बनिए when you know the real thing। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो लोग अपने ओपिनियंस फॉर्म कर लेते हैं without having read the man. So they should read Gandhi, and then if they want to agree with all the foolishness also which he has written, there is some wisdom there। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि गांधी जी ने बहुत विजडम भी नहीं कही है, बहुत सारी, बहुत उन्होंने बढ़िया बातें भी कही हैं। There's a lot that needs to be discarded, and we should discard it and accept that he was a flawed human being। उनको हमें वैसा दर्जा नहीं देना चाहिए जो अक्सर हम अपने लीडरान को देते हैं। Even I have a critical thinking towards Gandhi as a leader। तो इसीलिए वो और बहुत वाइबिंग हो गया, बहुत सिमिलर है। जी, well, that's very good to know, Ashita, and I'm so happy that you are open-minded enough, and you have critical faculty, and I think that's partly I will attribute to your being a trained psychologist, जो किसी की मानसिकता को उनके शब्दों से पकड़ लेती है। बिल्कुल सर। Thank you, sir. Thank you very, very much. I'm really, really happy to listen to all these beautiful, nice words, sir. Thank you. They're so appreciative. Thank you very much. Thank you, my dear. Yes, sir. Okay, Ashita. Thank you, sir. Thank you very much. Bye-bye.